Hi everyone, welcome to the session. So in this session, I want to discuss about backup and restore services in Azure. So let's get started. See, I'm going to make this topic into parts. So you will get the videos in parts for this topic because the topic is too lengthy. Practical steps takes a lot of time. So we will divide that into series of videos. So in the first video means today itself, I will be discussing about Azure Virtual Machines backup. Then in the next video, we will be talking about Azure File Shares backup. Then in the third one, we will be discussing about blob backups of the storage accounts. And then we will talk about the on-premises servers backup. So you will get this video accordingly, and this will be the part of our backup and restore services in Azure. So let's get started. See, we all know what is backup. Why do we need backup? सबको पता है हमें. So I don't want to discuss that point again कि backup होता क्या है. So just in one line, uh, backup is just giving us the surety that if something happens wrong, अगर कुछ गलत हुआ मेरे डेटा के साथ या मेरे वर्कलोड के साथ, then I should be able to recover it if I have the backup. So backup is like the assurance, backup is like the copy of the data that we have or the workload that we have, so that in case something wrong happens, अगर कुछ delete हो गया, or if something is corrupted, or if accidentally something has been deleted, the workload is not running, so we can recover from that backup and we can make our production live. सो बैकअप लेने के पीछे यही पर्पस है कि गलती से एक्सीडेंटली अगर कोई क्रिटिकल डेटा डिलीट होता है, वी कैन रिकवर इट इफ वी हैव द बैकअप. कल अगर किसी रीजन से अगर मेरा जो सर्वर है जिस पे मेरा वर्कलोड चल रहा है, फॉर एग्जांपल मेरी एप्लीकेशन चल रही है, और वो सर्वर अगर काम करना बंद कर देता है, इट बिकम्स अनरिस्पॉन्सिव. सो इफ वी हैव द बैकअप, वी कैन मेक इट प्रोडक्टिव अगेन. हम बैकअप से उसको रीस्टोर करके उसको दोबारा से प्रोडक्टिव बना सकते हैं, एंड वी कैन रिड्यूस द बिजनेस इम्पैक्ट. If let's say we have some important application data in drives of the virtual machine, और वो भी अगर मेरे से डिलीट हो जाता है, still if I have the backup I can recover it. So backup helps in multiple ways. Backups पूरे पूरे वर्चुअल मशीन के फेलियर में हमारी हेल्प करता है. If the VM has been failed, if it is not coming up, we can recover it from the backup. If the operating system has been corrupted, or if there is any challenge with the OS, we can recover it from the backup. If the data has been deleted or lost, we can recover it from the backup. So it helps us in multiple ways. अब देखो, the main thing which I wanted to highlight over here is कि हम कह तो देते हैं that backup is the copy of data. That is fine. But there is a difference between copy and backup. Copy में और backup में एक difference है. जैसे अगर मैं एक नॉर्मल कॉपी की बात करूं, देखो कॉपी और बैकअप वैसे तो एक ही जैसा काम कर रहे हैं ना. कॉपी एंड बैकअप बोथ आर डूइंग द सेम थिंग. अगर मेरे पास कोई फोल्डर है और उस फोल्डर में कोई डेटा है, अगर मैं उसका बैकअप लेना चाहता हूं, अगर मेरे लैपटॉप में ही, फॉर एग्जांपल मेरे इसी लैपटॉप में देर इज वन फोल्डर, और मैं उसका बैकअप लेना चाहता हूं, तो मैं जनरली क्या करूंगा, व्हाट प्रैक्टिस आई विल फॉलो. मैं क्या करूंगा, सपोज दिस इज माय फाइल और दिस इज माय फोल्डर, सपोज ये मेरा फोल्डर है, मुझे इसका बैकअप लेना है बिकॉज आई हैव सम इंपॉर्टेंट डेटा इनसाइड इट. तो मैं इसको सिंपली कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके किसी ड्राइव में पेस्ट कर दूंगा. मीन्स आई विल जस्ट कॉपी दिस एंड आई विल पेस्ट इट टू सम अनदर ड्राइव. मैं कहीं पे यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दूंगा, और आई विल पेस्ट इट इनटू लेट्स से इनसाइड द पेन ड्राइव. यूएसबी ड्राइव में मैं उसको सेव कर लूंगा, या फिर मैं उसको क्लाउड में सेव कर दूंगा, कहीं पे किसी गूगल ड्राइव में सेव कर दूंगा. सो आई एम जस्ट डूइंग द नॉर्मल कॉपी ऑपरेशन, राइट. मैं एक नॉर्मल कॉपी ऑपरेशन कर रहा हूँ. बट वाई डू वी स्पेशली और स्पेसिफिकली यूज द टर्म बैकअप. जब हम बैकअप की बात करते हैं, बैकअप में भी तो हम यही कर रहे हैं ना. बैकअप में भी जो हमारा डेटा है, हम उसके एक तरीके से कॉपी कर रहे हैं. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपी एंड बैकअप. क्यों हमें अलग से बैकअप का टॉपिक पढ़ना पड़ रहा है स्पेसिफिकली, जबकि हम कॉपी कर सकते हैं.
अगर मुझे मेरे डेटा का ही प्रोटेक्शन चाहिए तो मैं एज्योर के वीएम में जितनी भी मेरी ड्राइव्स है जहाँ पे मेरा डेटा रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मेरी डेटा डिस्क में या मेरे ओएस डिस्क में, उनके डेटा को मुझे प्रोटेक्ट करना है, मैं उनको कॉपी करके आई आई कैन सेव इट इनटू अनदर लोकेशन। एंड इफ एक्सीडेंटली मेरे ड्राइव का डेटा डिलीट हो जाता है, आई कैन रिकवर इट फ्रॉम दैट कॉपी विच आई हैव इनटू अनदर लोकेशन। देन अलग से बैकअप का टॉपिक होने की क्या रिक्वायरमेंट है, मींस व्हाट इज दिस बैकअप ऑल अबाउट। सी, जब हम कॉपी करते हैं, व्हेन वी कॉपी एनीथिंग, जब भी हम किसी डेटा की कॉपी करते हैं तो कॉपी में क्या होता है, पूरा का पूरा डेटा एज इट इज रेप्लिका बनाता है। मींस अगर मेरे पास कोई डेटा है, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव ए फोल्डर एंड द साइज ऑफ दैट फोल्डर इज अराउंड 1 GB, मान लो 1 GB का एक फोल्डर है मेरे पास, और मैं अगर उसको कॉपी करता हूँ, दिस फोल्डर इज ऑन लेट्स से डी ड्राइव, और मैं उसको कॉपी करता हूँ मेरे पेन ड्राइव में यानी मेरे यूएसबी में, जस्ट फॉर द बैकअप, कि मैंने डी ड्राइव का 1 GB का जो फोल्डर है उसको कॉपी कर लिया अपने पास, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर गलती से वो फोल्डर मेरे लैपटॉप से डिलीट होता है, आई हैव द कॉपी इन माई पेन ड्राइव, आई कैन रिकवर इट फ्रॉम देयर। सो कॉपी प्रोसेस में क्या हुआ, जब मैंने इस 1 GB के फोल्डर को कॉपी करके अपने पेन ड्राइव में रेप्लिकेट किया, कॉपी किया, सो इट विल कंज्यूम द एंटायर 1 GB इन साइड माई पेन ड्राइव एज वेल। मतलब ये मेरे लैपटॉप में भी 1 GB का स्टोरेज ले रहा है, प्लस मेरे पेन ड्राइव में भी जाके 1 GB का रेप्लिका यानी कि कॉपी क्रिएट करेगा व्हेन आई विल पेस्ट इट। सो इट विल यूज द कंप्लीट स्टोरेज, इट रिक्वायर्स द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ स्टोरेज विच इज देयर इन द सोर्स। सोर्स में जो स्टोरेज ये ले रहा था, डेस्टिनेशन में जहां पे भी आप इसको कॉपी करोगे एग्जैक्टली ये उतना ही स्टोरेज दोबारा लेगा। तो इस इट मीन्स कि हमें स्टोरेज पे अच्छी खासी कॉस्ट आने वाली है, वी हैव द बल्क डेटा और उसको हम कॉपी करके रखना चाहते हैं कंपनी में, बिकॉज टू प्रिवेंट द एक्सीडेंटल डिलीशन और इन केस ऑफ रिकवरी, तो हमारे पास एग्जैक्ट स्टोरेज होनी चाहिए। मतलब अगर मेरे पास 100 GB का डेटा है तो मेरे पास 100 GB के स्टोरेज अवेलेबल होने चाहिए, सो दैट आई कैन कीप दिस एज ए कॉपी। दिस इज वन डिफरेंस, दिस इज वन थिंग अबाउट द कॉपी। ये कॉपी के बारे में पहली चीज। दूसरी चीज कॉपी के बारे में ये है कि अगर मैं लेट्स से मेरे पास एक फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर लेट्स से देर इज ए फाइल, कई सारी फाइल्स है विच इज इन डॉक्स फॉर्मेट, .docx वाली फाइल है, या फिर मेरे पास एक्सेल फाइल्स है, एक्सेल एक्स वाली, या फिर देर आर सम इम्पोर्टेंट वीडियोस इन MP4। ये एक्सटेंशन है कुछ डेटा के, और इन टोटल लेट से मेरे पास 1 GB का डेटा है और मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी किया तो 1 GB का एग्जैक्ट स्टोरेज मेरे को चाहिए जहां पे मैं इसको सेव करूंगा। तो मान लो मेरे पास 1 GB का मेरे पेन ड्राइव में स्टोरेज था, आई कॉपीड ऑल दिस डेटा इनटू दैट पेन ड्राइव। तो होगा क्या, जब हम कॉपी करते हैं तो डेटा जो हम कॉपी कर रहे हैं उसका जो ओरिजिनल एक्सटेंशन है, द ओरिजिनल फॉर्मेट ऑफ द डेटा, दैट विल ऑल्सो बी कॉपीड। मतलब डॉक्यूमेंट्स का डेटा डॉक्यूमेंट्स में ही कॉपी हो रहा है, मतलब पूरा पूरा एज इट इज ओरिजिनल स्टेट में कॉपी होता है। एक्सेल का डेटा एक्सेल एक्स फॉर्मेट में ही जाएगा, एंड वीडियोस फाइल्स विल गो इनटू द MP4 ओरिजिनली। तो इससे ये हो सकता है, वन थिंग कैन हैपन, कि अगर इफ लेट सपोज देयर वाज सम वायरस, और देयर वाज सम वायरस सपोज इन दिस पर्टिकुलर सोर्स फोल्डर, इन इनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर डेटा में कोई वायरस था, सो व्हेन यू विल कॉपी द डेटा यू विल आल्सो कॉपी द वायरस अलोंग। डेटा के साथ साथ वायरस भी रेप्लिकेट होगा। इफ यू हैव द वायरस इन द डेटा, दैट वायरस इज आल्सो गोइंग टू बी रेप्लिकेटेड टू अनदर कॉपीड डेस्टिनेशन, वो वहां पे भी रेप्लिकेट होगा। दिस इज वन प्रॉब्लम। अनदर प्रॉब्लम इज, अगर मान लो आपने डेटा कॉपी कर भी दिया यहाँ पे अपनी पेन ड्राइव में या किसी दूसरे सोर्स में, एंड नाउ यू आर वेरी मच श्योर कि यार ठीक है, अगर मेरे सोर्स का डेटा कुछ डिलीट हो जाता है गलती से, देन आई कैन रिकवर इट फ्रॉम माय बैकअप। बट बैकअप में भी, इन द बैकअप, इफ एनी एक्सटेंशन गेट्स करप्टेड और इफ एनी डेटा गेट्स करप्टेड, जो आपके पास डेटा है इसमें से अगर कोई एक्सटेंशन करप्ट हो गया, मान लो ये MP4 वाली फाइल करप्ट हो गई आपके पेन ड्राइव के अंदर पड़े पड़े,
क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने उस पेन ड्राइव को कहीं और पे भी यूज किया हो। आफ्टर कॉपिंग दिस डेटा यू हैव सम स्पेस लेफ्ट, तो आपने उस पेन ड्राइव को जाके किसी और लैपटॉप में लगा दिया, एंड इन दैट लैपटॉप देयर वाज सम वायरस, सो सम ऑफ योर बैकअप फाइल्स गॉट करप्टेड, आपकी बैकअप फाइल्स करप्ट हो गई। और उसकी वजह से एक्चुअल में जिस दिन लॉस हुआ, एक्चुअल में जिस दिन आपका फोल्डर आपके लैपटॉप से डिलीट होता है या आपको डेटा रिकवरी की रिक्वायरमेंट होती है, और जब आप पेन ड्राइव लगा के फिर से रिकवरी करने के लिए बैठते हो, एंड यू आर वेरी हैप्पी कि आई हैव द बैकअप, यू आर नॉट एबल टू रिकवर इट। क्यों? क्योंकि आपके पेन ड्राइव में जो आपने कॉपी रखी हुई थी, सम ऑफ द एक्सटेंशंस गॉट करप्टेड बिकॉज ऑफ सम वायरसेस। ये भी एक प्रॉब्लम है विद द कॉपी, अगर आप कॉपी करते हो डेटा को डायरेक्टली तो। वन मोर प्रॉब्लम विद द कॉपी इज कि आप इसको मैनेज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट मैनेज इट। अगर मुझे ऑटोमेशन पॉलिसीज लगानी है कि मेरा ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है या मेरी ये ड्राइव बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लो मेरी डी ड्राइव बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मेरे डी ड्राइव का बैकअप जो है हर दिन अपने आप होते रहना चाहिए, मैं चाहता हूँ इन एवरी 4 आवर्स, हर 4 घंटे में मेरे डी ड्राइव में जितना भी डेटा है उसका बैकअप होता रहे या कॉपी होते रहे, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो मैनेजेबिलिटी ऑटोमेशन सेटअप इज नॉट पॉसिबल व्हेन यू कॉपी द डेटा। तो ये प्रॉब्लम्स है विद द डायरेक्ट कॉपी। इसके अलावा यू कैन नॉट कॉपी द वर्कलोड्स। डेटा तो आप फिर भी कॉपी कर लोगे, बट आप वर्कलोड्स को कॉपी कैसे करोगे? वर्कलोड इन इट मीन्स कि आपकी एक वर्चुअल मशीन है और आपके वर्चुअल मशीन में लेट्स से यू आर रनिंग वन ऑफ द डीएचसीपी, उसमें डीएचसीपी चल रहा है या डीएनएस सर्वर चल रहा है या फिर आपका वेब सर्वर चल रहा है, आईआईएस, या एप्लीकेशन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, एंड यू वांट to copy this DHCP, DNS और वेब सर्विसेज along with the server. That is not possible in the copy. अब वीएम कैसे कॉपी करोगे? वीएम कॉपी, सर्वर कॉपीज आर नॉट पॉसिबल। डेटा को कॉपी किया जा सकता है बट यू कैन नॉट कॉपी द डायरेक्ट वर्कलोड्स रनिंग इनसाइड द सर्वर, या फिर आप पूरे पूरे सर्वर तक को कॉपी नहीं कर सकते। एंड दैट इज द रीजन, बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस वी हैव बैकअप इन प्लेस। इस वजह से बैकअप ऑर्गेनाइजेशन लेती है। तो बैकअप लेने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि बैकअप डज नॉट कंज्यूम द फुल स्टोरेज। बैकअप पूरा स्टोरेज कंज्यूम नहीं करता। अगर आपने 1 GB के डेटा का बैकअप लिया है, सो इट विल नॉट कंज्यूम 1 GB ऑन द डेस्टिनेशन। जहां कहीं पे भी आप बैकअप लेके रखोगी, इट विल नॉट कंज्यूम द 1 GB। इट विल ऑलवेज आर्काइव द डेटा, या आपके डेटा को हमेशा आर्काइव मोड में लेता है। आई डोंट नो द स्पेलिंग ऑफ आर्काइव इज करेक्ट और नॉट। आर्काइव, या दिस वन इज राइट, ARCHIV। सो बैकअप हमेशा आपके डेटा को आर्काइव मोड में लेता है। मतलब जब भी आप डेटा बैकअप लोगे, इट विल ऑलवेज गो इनटू द आर्काइव मोड। तो जो 1 GB का डेटा है वो एक्चुअल में आर्काइव या कंप्रेस्ड हो जाता है। जैसे आपने WinRAR के बारे में सुना होगा, ठीक उसी तरीके से आपका जो भी डेटा है, व्हेन यू टेक द बैकअप ऑफ इट, इट विल बी इनटू द कंप्रेस्ड फॉर्मेट। डेटा के साइज को रिड्यूस कर दिया जाता है, देन इट विल बी सेव्ड इनटू द लोकेशन विच यू चूज। अब जहां पे भी आपने बैकअप लेके रखा, सिस्टमेटिकली इट विल बी चूज, इट विल बी सेलेक्टेड ओवर देयर। सो दैट इज वन थिंग अबाउट द बैकअप। दूसरी बात बैकअप की ये है कि जब डेटा आर्काइव होता है, तो आर्काइव होने से जो डेटा का ओरिजिनल फॉर्मेट है, द एक्सटेंशन ऑफ द डेटा विल बी चेंज्ड, क्योंकि उसके ऊपर आर्काइवल लेयर आ चुकी है। अगर आपने, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, MP4 का डेटा, XLX का डेटा, आपने इनका बैकअप लिया, तो वो आर्काइव हो चुका है। आर्काइव होने के बाद ये जो ओरिजिनल डेटा है, इट इज इनटू द कंप्रेस्ड फॉर्मेट, और इसके ऊपर आर्काइवल की लेयर आ चुकी है, तो आर्काइवल एक्सटेंशन एप्लीकेबल होगा। तो इट मीन्स जहां पे आपने इसको स्टोर किया है, जहां पे आपने बैकअप स्टोर किया है, अगर वहां पे किसी टाइप का करप्शन होता है, डेटा इज करप्टेड या फिर कुछ करप्ट होने के भी चांस होगा, तो उस केस में मेरे डेटा को डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि उसके ऊपर आर्काइवल लेयर है। और जब हम उसको रीस्टोर करना चाहेंगे, व्हेन वी वांट टू रीस्टोर द डेटा फ्रॉम द बैकअप, हमें वापस से इस आर्काइव डेटा को डी आर्काइव या डीकम्प्रेस करना पड़ेगा। तो दोबारा से डीकम्प्रेस प्रोसेस होगा और डेटा को ओरिजिनल स्टेट में वापस लेके आया जाएगा, देन इट विल बी रीस्टोर्ड। एंड विद द बैकअप वी कैन मैनेज इट वाया द ऑटोमेशन पॉलिसीज। हम इसको पॉलिसीज के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, हम इसमें शेड्यूलर्स लगा सकते हैं, ऑटोमेशन लगा सकते हैं। प्रैक्टिकली वी विल सी हाउ डज इट वर्क। और बैकअप
लेने के लिए कोई कॉपी प्रोसेस नहीं होता। कॉपी इज अ डायरेक्ट कॉपी, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया हमने। बैकअप लेने के लिए वी नीड द टूल्स। बैकअप के लिए हमें टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। वी नीड सम ऑप्शंस। तो जब हमें बैकअप लेना हो, वी हैव सम ऑप्शंस लाइक बीम बैकअप। बीम बैकअप करके एक SaaS प्रोवाइडर आता है आज की डेट में, वी कैन यूज इट। इवन इट कम्स एज ए एजेंट सॉफ्टवेयर एज वेल, जो ऑन प्रेमाइसिस में यूज होता था काफी ज्यादा। सो कंपनी यूजेस द बीम बैकअप। दिस solution इज अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द कंपनी। देन वी हैव NetApp बैकअप सॉल्यूशंस। इसके अलावा जब हम माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड या एज्योर क्लाउड की बात करते हैं, सो इन एज्योर ऑल्सो वी हैव द एज्योर बैकअप सर्विसेज अवेलेबल। इन AWS वी हैव द AWS बैकअप सर्विसेज। सो क्लाउड की अपनी खुद की सर्विसेज है वेयर वी कैन टेक द बैकअप। इसके अलावा वी कैन गो टू एनी अदर थर्ड पार्टी सॉल्यूशंस एज वेल। तो कंपनी की जैसी रिक्वायरमेंट होगी, दे टेक द बैकअप अकॉर्डिंगली। बट एज्योर बैकअप इज वेरी फेमस। If the companies are using the Microsoft environment, if they are relying on the Azure cloud, then you will definitely see the Azure backup service. And Veeam Backup is a tool, और आजकल ये SaaS प्रोवाइडर के तौर पे भी आने लग गया है। सो इट कम्स एज ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइडर इन द क्लाउड एज वेल, जहाँ पे ये मैनेज सर्विस के तौर पे आएगा। एंड Veeam विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मैनेजेबिलिटी टास्क। बाकी ये टूल भी आता है दैट वी हैव टू परचेज एज ए लाइसेंस इन द कंपनी, वी हैव टू इंस्टॉल इट इन द ऑन premises server for the backups. And if we want to use the Azure backup, you can also use it. You can use AWS backup services, Google Cloud backup services, the NetApp solutions. We have a lot, like we have multiple options available. So we will be focusing on the Azure backup services. हम इस पे focus करेंगे because we are the cloud guy and we are strengthening ourselves into the Azure environment. तो हम Azure backup के ऊपर focus करेंगे. We will not be discussing about the Veeam solutions. So let's talk about this. So जैसा कि मैंने बताया कि मैं वीडियो को 4 पार्ट्स में बनाऊंगा। आज हम बात करेंगे एज्योर वर्चुअल मशीन्स के बैकअप एंड रीस्टोर ऑपरेशंस के बारे में। देन वी विल डिस्कस अबाउट एज्योर फाइल शेयर्स इन द नेक्स्ट वन, ब्लॉब सर्विसेज रिकवरी इन द नेक्स्ट वन, एंड ऑन प्रीमाइसिस सर्वर्स इन अनदर वीडियो। ऑन प्रीमाइसिस सर्वर्स का बैकअप वगैरह तो बहुत इजी है टॉपिक। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। इसके ठीक बाद वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डिजास्टर रिकवरी सिनेरियो, ASR, एज्योर साइट रिकवरी, जो इसके ऊपर बहुत सुपीरियर लेवल पे टॉपिक आता है फॉर द डिजास्टर रिकवरी। सो लेट्स सी द प्रैक्टिकल ऑफ इट। थ्योरी ज्यादा इसमें है नहीं। अगर हम बात करते हैं एज्योर बैकअप सर्विस की, अगर मैं एज्योर सर्विस यूज कर रहा हूँ फॉर द बैकअप, सो मैं क्या क्या बैकअप ले सकता हूँ एज्योर में। सो व्हाट कैन आई बैकअप, आप इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जाओगे, यू वुड बी एबल टू सी इट। सो मैं पूरे पूरे ऑन प्रीमाइसिस का बैकअप ले सकता हूँ एज्योर में। मतलब मेरे ऑन प्रीमाइसिस में जितने भी वर्कलोड चल रहे हैं, लाइक माई फाइल्स, माई फोल्डर्स, सिस्टम स्टेट मतलब पूरे पूरे सर्वर का स्टेट, ऑन प्रीमाइसिस सर्वर्स का। चाहे वो हाइपर वी में चल रहे हो, चाहे वो VMware के एनवायरनमेंट में चल रहे हो, आई कैन टेक देयर बैकअप इनटू द एज्योर क्लाउड। मैं उनका बैकअप एज्योर में लेके रख सकता हूँ। मींस ये ऑन प्रीमाइसिस बैकअप को भी सपोर्ट करता है एज्योर के ऊपर। इफ माई वर्चुअल मशीन्स आर रनिंग ऑन एज्योर, चाहे वो लाइनेक्स की VMs हो, चाहे विंडोज की VM हो, अगर वो एज्योर के ऊपर चल रही है, आई कैन ऑल्सो टेक देयर बैकअप इनटू एज्योर। तो एज्योर के VMs, irrespective of Linux और Windows, आई कैन टेक देयर बैकअप इनटू एज्योर। कोई भी मैनेज डिस्क अगर एज्योर पे चल रही है, मतलब जो हम डिस्क क्रिएट करते हैं, लाइक प्रीमियम SSD, स्टैंडर्ड SSD, इफ यू रिमेम्बर, तो उनका बैकअप भी एज्योर पे लेके रखा जा सकता है। एज्योर फाइल्स, जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था एज्योर फाइल्स, तो एज्योर फाइल्स का बैकअप आप लेके रख सकते हो। वेदर इट इज क्लासिक फाइल शेयर, वेदर इट इज NFS फाइल शेयर, आप उसका बैकअप एज्योर पे रख सकते हो। इसके अलावा इफ यू आर रनिंग द SQL सर्वर इनसाइड द एज्योर VM, आप उसका बैकअप भी एज्योर में ले सकते हो। अगर आप SAP HANA डेटाबेसिस चला रहे हो एज्योर पे, यू कैन टेक देयर बैकअप एज वेल। अगर आप डेटाबेसिस यूज कर रहे हो, पोस्टग्रेस, एनीथिंग, यू कैन ऑल्सो टेक देयर बैकअप। ब्लॉब्स का बैकअप ले सकते हो। क्यूबरनेटीज, अगर आप AKS फंक्शन यूज कर रहे हो, एज्योर क्यूबरनेटीज सर्विसेज इन एज्योर, आप उसका बैकअप ले सकते हो।
माई सीक्वल सर्वर का बैकअप ले सकते हो, एसएपी एएसई साइबेस का बैकअप ले सकते हो, डेटा लेक स्टोरेज अगर आप यूज कर रहे हो उसका, इलास्टिक सैन उसका। सो इट सपोर्ट्स अ लॉट ऑफ थिंग, अ लॉट। और ये आपको पता होना चाहिए क्या क्या बैकअप ले सकते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट वर्चुअल मशीन्स, इट्स नॉट ओनली अबाउट डेटा, इट्स अबाउट मल्टीपल वर्कलोड्स एंड सर्विसेज विच एज्योर सपोर्ट्स। तो एज्योर बहुत कुछ सपोर्ट करता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए किस किस चीज का बैकअप हम ले सकते हैं। सो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइटल्स अवेलेबल हियर। अब ये जब बैकअप लेता है, पहली बात तो ये, जब ये बैकअप लेता है एज्योर पे तो रखता कहाँ पे है, दैट इज द क्वेश्चन। मैं इतनी चीजों का बैकअप ले सकता हूं, बट बैकअप लेके एज्योर में मैं रखता कहाँ पे हूँ उसको, वेयर डू आई स्टोर ऑल दीज बैकअप्स। सो बैकअप मैनेज करने के लिए या बैकअप स्टोर कंट्रोल करने के लिए वी हैव वन सर्विस कॉल्ड RSV, रिकवरी सर्विसेज वॉल्ट। सो एज्योर में जब भी आप किसी सर्विस का बैकअप रखते हो, वेदर इट इज ऑन प्रीमाइसेस वेदर इट इज क्लाउड सर्विस, इट विल बी स्टोर्ड इनसाइड द RSB। वो सारा बैकअप रिकवरी सर्विस वॉल्ट में स्टोर होता है, वहीं से मैनेज होता है। वहीं पे हम पॉलिसी लगाते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली। थ्रू द पॉलिसी वी मैनेज इट। वहीं पे हम शेड्यूल लगाते हैं, कब कब बैकअप चलेगा, कैसे चलेगा, एंड वी मैनेज इट। एंड इफ वी वांट टू रीस्टोर इट, दैट विल आल्सो मैनेज्ड बाय द रिकवरी सर्विसेज वॉल्ट। तो रिकवरी सर्विस वॉल्ट अपने आप में एक रिसोर्स है जिसके अंदर आप मल्टीपल बैकअप्स को स्टोर करते हो और उनको कंट्रोल करते हो। आप इसके अंदर मल्टीपल सर्वर्स का बैकअप ले सकते हो एक ही रिकवरी सर्विस वॉल्ट में। यू कैन कनेक्ट योर मैनेज डिस्क, योर फाइल्स, एसएपी, सीक्वल डेटाबेसेस। एक ही रिकवरी सर्विस वॉल्ट में आप मल्टीपल रिसोर्सेज को कनेक्ट करके उनका बैकअप रख सकते हो। एंड इट इज प्रोटेक्टेड, इट इज हाईली प्रोटेक्टेड। रिकवरी सर्विस वॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में बहुत प्रोटेक्टेड है। इवन यू कैन नॉट डिलीट इट डायरेक्टली। आप इसको एक्सीडेंटली जाके डिलीट भी नहीं कर सकते। इट इज इन द लॉक स्टेटस बाय डिफॉल्ट। ये लॉक होता है, इट इज लॉक्ड। तो क्योंकि इसके अंदर सारे बैकअप्स चल रहे होते हैं, तो कोई भी एक्सीडेंटली जाके इस पे क्लिक करके और सोच रहा है मैं डिलीट कर दूं, इट विल नॉट हैपन। यू हैव टू मेक सर्टेन चेंजेस, यू हैव टू चेंज सम ऑर्डर्स, इम्यूटेबिलिटी, तब जाके ये डिलीट होता है। सो इसको आप डायरेक्टली डिलीट भी नहीं कर सकते। इट इज हाईली प्रोटेक्टेड रिसोर्स इन एज्योर क्लाउड। और सारे बैकअप इसी में स्टोर होते हैं। जितने भी यहाँ पे टाइटल्स लिखे हुए हैं वो सारे बैकअप्स रिकवरी सर्विसेज वॉल्ट में ही स्टोर होते हैं। इट मीन्स बैकअप रखने के लिए मेरे पास RSB का होना जरूरी है एज्योर में। तो प्रैक्टिकल देखते हैं, हाउ डू वी गो थ्रू ओवर दिस। सो फॉर दिस प्रैक्टिकल, क्योंकि अभी हम पहले फेज में बात करने वाले हैं वर्चुअल मशीन्स की, कि VMs का बैकअप एज्योर में कैसे लिया जाता है, तो इट मीन्स हमारे पास एक वर्चुअल मशीन होनी चाहिए। सो आई विल क्रिएट वन ऑफ द VM, चाहे वो लाइनक्स हो चाहे विंडोज हो, प्रोसेस टू टेक द बैकअप इज सेम। क्रिएट पे जाते हैं, अभी हमारे पास कोई भी रिसोर्स नहीं है, सो आई विल क्रिएट वन ऑफ द वर्चुअल मशीन। उस वर्चुअल मशीन में मैं कुछ डेटा रखूंगा, कुछ वर्कलोड्स क्रिएट करूंगा, फिर हम इसका बैकअप इनेबल करेंगे, फिर हम इसकी रिकवरी भी देखेंगे। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी टॉपिक। अभी तक जितने भी टॉपिक करे हैं उससे काफी इजी है, क्योंकि बैकअप ऑपरेशन इज नॉट ए बिग टास्क, बट इसके पीछे की जो थ्योरी है, दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंटेंस। अभी मैं आगे की वीडियोस में बात भी करूंगा टाइप्स ऑफ बैकअप, अभी मैंने नहीं करा बिकॉज इट विल बी अ लॉट ऑफ थ्योरी। तो मैं टाइप्स ऑफ बैकअप की बात भी करूंगा आगे जाके, फुल बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप, क्योंकि वो इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आगे, जो ज़्यादा टाइम ना ले। एक VM क्रिएट करते हैं, एंड कोई भी रीजन ले लो। इफ़ यू वांट टू कीप इट इन द हाई अवेलेबिलिटी रखो, नहीं रखना तो इंडिपेंडेंट। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स, विंडोज, एनीथिंग विल वर्क। 2 CPU 8 GB रैम ले लेते हैं, और यूज़र ID पासवर्ड। रिमोट इनेबल कर देते हैं इसका। देन इन टर्म्स ऑफ डिस्क, जस्ट टू सेव द कॉस्ट, मैं इसको स्टैंडर्ड SSD कर देता हूँ। कोई भी डिस्क हो सकती है, स्टैंडर्ड SSD, प्रीमियम SSD या स्टैंडर्ड HDD। प्लेटफॉर्म मैनेज की के थ्रू इसका इंक्रिप्शन हम मैनेज कर रहे हैं। ये टॉपिक हमने डिस्कस करना है आगे जाके, CMK एंड PMK।
VNet, subnet. Let's change the name of it. Ranges are okay for me. Ranges चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे. आई नीड वन पब्लिक आईपी टू टेक द रिमोट राइट अवे. हमने लास्ट टाइम पॉलिसीज के बारे में डिस्कशन किया था, सो दैट इज इम्पोर्टेंट. कंपनी में टैक्स इन्फोर्स्ड होते हैं थ्रू द पॉलिसीज, तो मैंडेटरी हो जाता है. एंड पॉलिसीज आर वन ऑफ द आर्किटेक्ट लेवल टॉपिक, तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. So deployment is taking a little bit time. Now it is done. So we have one virtual machine ready. एक VM है मेरे पास, VM01. And I just created this recently. What I will do is I will add one data disk as well. इसमें मैं एक data disk add कर देता हूँ. So I will move to the settings, then disk. अभी मेरे पास एक OS disk है. I will create one more data disk here. इसका नाम दे देते हैं data disk 01. और इसको भी स्टैंडर्ड SSD या प्रीमियम ही रहने देते हैं. चलो कुछ तो प्रीमियम रहने देते हैं. 4 GB साइज इज ओके. देन अप्लाई. So this is also created. Now let me take the remote of it. अब इसका रिमोट लेते हैं. So let me enter the password. Now let's wait for the VM to be loaded. VM लोड होने का वेट करते हैं. It is still in the process to load.
तो सर्वर मैनेजर ओपन हो गया इसका। इसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज, क्योंकि अभी हमें इसकी रिक्वायरमेंट होने वाली है। आई वांट टू इंस्टॉल द IIS रोल फॉर द वेब सर्वर। और मीनवाइल जब तक ये रिफ्रेश हो रहा है, आई विल ओपन द डिस्क मैनेजमेंट। और आपको पता ही है मैं क्या करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू इनिशलाइज दिस डिस्क, क्योंकि हमने डेटा डिस्क ऐड करी है, तो डेटा डिस्क को VM के अंदर इनिशलाइज करना पड़ेगा, जस्ट टू सी इट एज ए ड्राइव ऑप्शन। अगर नहीं पता है देन लुक एट द VM सीरीज, जहाँ पे मैंने डिस्क के बारे में बताया था इन द सेम प्लेलिस्ट, डेटा डिस्क, OS डिस्क एंड टेम्प डिस्क। तो वी हैव सम स्पेस ऑफ अराउंड 4 GB अनएलोकेटेड। हम इसका पार्टीशन बना लेते हैं। F लेटर इज फाइन फॉर मी। फिनिश। तो एक F ड्राइव बन चुकी है। अब मैं एक बार फाइल एक्सप्लोरर में चेक कर लेता हूँ। बन चुकी है, यस, बट देयर इज नो डेटा इनसाइड दिस। तो इसके अंदर कुछ डेटा कॉपी कर लेते हैं। और आपने देखा होगा जब मैं रिमोट ले रहा था तो मैंने क्लिपबोर्ड करके एक ऑप्शन चेक किया था, क्योंकि अब चेंजेस हो गए हैं। तो जब आप रिमोट लोगे और इफ यू वांट टू कॉपी समथिंग, तो आपको क्लिपबोर्ड इनेबल करना पड़ेगा। अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू कॉपी एनीथिंग अक्रॉस द वर्चुअल मशीन्स। ये नए अपडेट्स हुए हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने लैपटॉप से कुछ डेटा उठा के इसमें कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एफ ड्राइव में। आई विल कॉपी दिस वन, देन लेट मी कॉपी दिस वन ऑल्सो। एक ये फाइल भी कॉपी कर लेते हैं। लेट मी कॉपी दिस वन ऑल्सो। 3 फाइल्स आर इनफ। 3 चीजें कॉपी कर ली मैंने। सो इन माई एफ ड्राइव नाउ आई हैव सम डेटा। 3 फाइल्स आर हियर। आप चाहो तो इनको फोल्डर में भी डाल सकते हो। जैसे मैं एक काम करता हूँ, एक को मैं एक फोल्डर में डाल देता हूँ, डेटा। एंड इसमें से 2 फाइल को मैं मूव कर देता हूँ उस पर्टिकुलर फोल्डर में। आई विल डू कट पेस्ट। और 2 फाइल्स को बाहर ही एक फाइल को बाहर रहने देते हैं, और 2 फाइल्स को मैंने फोल्डर के अंदर स्ट्रक्चर कर दिया है। तो नाउ आई हैव सम डेटा इन माय ऐप ड्राइव। मेरे ऐप ड्राइव में कुछ डेटा है। C ड्राइव में तो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्लीट डेटा है ही। अगर कोई एप्लीकेशन या वर्कलोड चल रहा होगा तो उसका डेटा भी यहाँ पे होगा। नाउ लेट्स डू वन थिंग। नाउ लेट मी गो टू द सर्वर मैनेजर। और मैं इस सर्वर के अंदर वर्कलोड भी चलाने वाला हूँ। डेटा तो है ही मेरे पास, डेटा मैंने रख दिया है सर्वर के अंदर। बट आई वॉन्ट टू रन द वर्कलोड ऑल्सो, क्योंकि मैं पूरे पूरे सर्वर का बैकअप देखना चाहता हूँ कि डेटा का, पूरे वर्कलोड्स का, पूरे वर्चुअल मशीन का बैकअप किस तरीके से काम करता है एज्योर में। सो डेटा है। नाउ आई विल मूव टू द सर्वर मैनेजर, और इसके अंदर मैं रोल्स एंड फीचर्स में जाके आई विल इंस्टॉल द IIS। वो भी आपको पता ही है, ये प्रोसेस भी हम कर रहे हैं काफी टाइम से थ्रू द लोड बैलेंसिंग क्लासेस। सो आई विल मूव टू द वेब सर्वर IIS। Next, 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 and install. Now let's wait for the installation to get completed.
It's taking time again. So this installation is also succeeded. Now I will upload one of the web page. एक सिंपल सा HTML पेज इस पे अपलोड कर देते हैं. ये भी आप लोगों को पता ही है. In case you don't know, look at the previous load balancing solutions वीडियो, और उससे पहले मैंने वेब सर्वर डिप्लॉयमेंट्स के ऊपर भी वीडियो बना रखी है. So you will get everything in this playlist. I will write this is my web server for testing. कुछ भी लिख देंगे. Keyboards are not, yeah. इसको सेव कर देते हैं. So we have to save it in the C drive. वही initpub www root, and here I will create a file called default.html. और मैं इसको कर देता हूँ save as type all files, then save. Now because here we are running one of the web page, so अभी जब मैं इसको एक्सेस करूंगा तो ये एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि एक चीज हम भूल गए. If you remember, during the deployment we did not enable port number 80 for HTTP traffic. तो अगर मैं इसका पब्लिक आईपी लेता भी हूँ, and if I copy it here, then slash default.html, it will not work. नहीं चलेगा, क्योंकि we did not enable port 80 during the deployment. तो कर लेते हैं enable. We will move to the VM, then we will go to the networking, network settings. एक ऑप्शन है NSG, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, दैट वी विल डिस्कस इन द फ्यूचर. बहुत ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है. फ्रॉम हियर वी कैन इनेबल द इनबाउंड एंड आउटबाउंड एक्सेस. तो नेटवर्क सेटिंग्स में जाके गो टू द नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप. अभी यहाँ पे RDP इनेबल है, जो कि हमने डिप्लॉयमेंट के टाइम पे अलाउ किया था. हियर आई विल क्लिक ऑन क्रिएट पोर्ट रूल, एंड वी हैव टू इनेबल इनबाउंड पोर्ट रूल. और यहाँ पे आके हम पोर्ट 80 को अलाउ कर देते हैं इन द सर्विस HTTP पोर्ट नंबर 80. एक्शन अलाउ कर देंगे हम. यहाँ पे एक प्रायोरिटी वैल्यू आती है, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या है ये. देन आई विल स्टार्ट द टॉपिक NSG एंड ASG. इसका नाम मैं दे देता हूँ रूल का HTTP अलाउ, क्योंकि हमें एक रूल नेम देना होता है. सो आई विल गिव HTTP अलाउ, और एक्शन को अलाउ करके देन ऐड. सो वन रूल इज क्रिएटेड, HTTP अलाउ, पोर्ट नंबर 80 अलाउ कर दिया है मैंने. अब अगर मैं साइट एक्सेस करूंगा, इट शुड बी एक्सेसिबल. तो वेट करते हैं. तब तक हम IP भी चेक कर लेते हैं. यस, दिस इज द करेक्ट IP. रूल थोड़ा टाइम भी लेता है इफेक्ट में आने में. आई जस्ट क्रिएटेड दैट. और ये HTTP में होना चाहिए. वन मोर थिंग, क्योंकि हमारी साइट HTTP में है. सी, नाउ इट इज एक्सेसिबल. सो मेरा वेब सर्वर परफेक्टली काम कर रहा है. इट मीन्स माई वर्कलोड इज रनिंग इन माई सर्वर. मेरा वर्कलोड इस सर्वर में चल रहा है. दैट इज द फर्स्ट थिंग. क्या चल रहा है? मेरी साइट चल रही है. दिस इज माई वेब सर्वर. सेकेंड थिंग इज, इसमें मेरा कुछ डेटा है. जस्ट लाइक यू कैन सी इन माई ऐप ड्राइव आई हैव सम इम्पोर्टेंट डेटा. इसमें एक फोल्डर है, उस फोल्डर में दो फाइल्स है और एक फाइल है. सो दिस इज माई इंपॉर्टेंट कंपनी डेटा. सो दिस सर्वर इज फुली इक्विप्ड विद वर्कलोड प्लस डेटा. नाउ आई वांट टू टेक द बैकअप ऑफ दिस. मुझे इसका बैकअप लेना है. हाउ कैन आई डू दैट इन एज्योर? सो सर्वर इज रेडी. बैकअप लेने के लिए मैंने आपको बताया वी मस्ट हैव द रिकवरी सर्विसेज वॉल्ट. RSB का होना जरूरी है हमारे पास. तो सबसे पहले हमें रिकवरी सर्विस वॉल्ट बनाना है. अगर आपके पास रिकवरी सर्विस वॉल्ट नहीं है, तो आप VM में जाके भी ड्यूरिंग द बैकअप इनेबलमेंट टाइम आप उसको इनेबल कर सकते हो, अगर आप पे नहीं है तो. जैसे यहाँ से जाके व्हेन यू इनेबल द बैकअप फ्रॉम द बैकअप प्लस डिजास्टर रिकवरी, तो यहाँ पे बैकअप पे क्लिक करके यू कैन क्रिएट द रिकवरी सर्विस वॉल्ट. आप इस टाइम भी क्रिएट कर सकते हो. अगर आपको यहाँ से क्रिएट नहीं करना है, देन यू कैन डायरेक्टली गो टू द सर्च बॉक्स एंड टाइप रिकवरी सर्विसेज वॉल्ट. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू फॉर इनेबलिंग द बैकअप. हमारे पास वर्कलोड रेडी है, सर्वर्स रेडी है. नाउ क्रिएट द रिकवरी सर्विसेज वॉल्ट. सो अभी कोई रिकवरी सर्विस वॉल्ट नहीं है मेरे पास.
तो क्रिएट करो, सब्सक्रिप्शन चूज करो किस सब्सक्रिप्शन में क्रिएट करना है, देन चूज द रिसोर्स ग्रुप, और इसका एक नाम दे दो। आई विल गिव इट एज RSB01। यूनिक नेम की रिक्वायरमेंट नहीं है इसको, इट इज नॉट ए ग्लोबल सर्विस। किस रीजन में बनाना है, बना दो, क्लिक ऑन नेक्स्ट। इसमें रिडंडेंसीज ऑप्शन आते हैं, और वही सेम जैसे हमारे स्टोरेज में आते थे, LRS GRS वाले। तो लोकली रिडंडेंट अगर मैं चूज करता हूँ, तो मेरा जो रिकवरी सर्विस वॉल्ट है, इसमें इस रिकवरी सर्विस वॉल्ट की 3 कॉपीज क्रिएट होगी इन द सेम डेटा सेंटर। जैसे मैंने यूके साउथ चूज किया, तो यूके साउथ के 3 डिफरेंट रैक्स में ये 3 कॉपीज क्रिएट करेगा। इन केस इफ एनी रैक इज डाउन, so my RSB will not be impacted, क्योंकि 2 और कॉपीज अवेलेबल है इन द 2 डिफरेंट रैक्स। बट अगर मैंने इसको GRS चूज किया, मतलब जियो रिडंडेंट चूज किया, तो उस केस में इट विल क्रिएट फर्स्ट 3 कॉपीज इन द प्राइमरी रीजन। जैसे यूके साउथ है मेरा, तो यूके साउथ में 3 कॉपी करेगा एक डेटा सेंटर में। एंड इन द पेयर्ड रीजन, पेयर्ड रीजन क्या है यूके साउथ का, यूके वेस्ट, ये हमने स्टोरेज के टाइम पे डिस्कस किया था इफ यू रिमेम्बर। तो यूके वेस्ट में अगेन इट इज गोइंग टू क्रिएट 3 लोकल कॉपीज इन द सेम डेटा सेंटर। तो अगर मेरा यूके साउथ रीजन इम्पैक्ट होता है, एंड इफ यूके साउथ इज नॉट एक्सेसिबल, उसकी वजह से मेरा RSB एक्सेस नहीं हो रहा है, सो स्टिल आई कैन डू द फेल ओवर टू द यूके वेस्ट, और यूके वेस्ट से मैं फिर अपना डेटा एक्सेस कर सकता हूँ, या RSB एक्सेस कर सकता हूँ फॉर द बैकअप एंड रिकवरी पर्पस। तो ये इसका बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है, और बाय डिफॉल्ट ये जियो रिडंडेंट सेलेक्टेड होता है। मतलब द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ रिकवरी सर्विस वोल्टी की ये जियो रिडंडेंट पे सेलेक्टेड होता है। आप इसको LRS कर सकते हो एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट, लेकिन अगर आपने GRS ही रहने दिया, जीरो रिडंडेंट रहने दिया, तो आप इसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। जैसे स्टोरेज में तो हम इसको बाद में चेंज कर सकते हैं, LRS से ZRS GRS कुछ भी कर सकते हैं, बट हियर इट इज नॉट परमिटेड। आपने जो भी ऑप्शन लिया है, इफ यू हैव चूजन द जियो रिडंडेंट, यू कैन नॉट रोल इट बैक टू द लोकली रिडंडेंट आफ्टर द डिप्लॉयमेंट। ये ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा, फिर वहीं पे लॉक हो जाएगा। तो मैं इसको डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ। आई विल मेक इट जियो रिडंडेंट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट, इंक्रिप्शन कैसे मैनेज होगा, मतलब आपका जो डेटा है रिकवरी सर्विस वोल्ट का, उसको उसका जो इंक्रिप्शन है, हाउ इट विल बी मैनेज्ड। तो अभी हम डिफॉल्ट रहने देंगे माइक्रोसॉफ्ट मैनेज की। लेट द माइक्रोसॉफ्ट मैनेज ऑल द इंक्रिप्शन एंड सिक्योरिटी। हम माइक्रोसॉफ्ट को बोल रहे हैं कि तुम ही मैनेज करो सब कुछ, सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन। क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे एक ऑप्शन है वॉल्ट प्रॉपर्टीज में, इम्यूटेबिलिटी। इम्यूटेबिलिटी इज वन ऑफ द प्रोटेक्शन टॉपिक, और इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि ये क्या ऑप्शन है। फॉर नाउ इसको आप चेक नहीं करें, आप इसको चेक मत करना, डोंट इनेबल द इम्यूटेबिलिटी, इसको अनचेक रहने दो। बाकी इसके ऊपर मैं एक सेपरेट डिस्कशन करूंगा। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर, सिक्योरिटी से रिलेटेड है ये, प्रोटेक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट। सो बाय डिफॉल्ट मैं इसका एक्सेस सारे नेटवर्क से दे रहा हूँ, बट इन केस यू वांट टू गिव द प्राइवेट एक्सेस फ्रॉम द प्राइवेट एंड पॉइंट, की प्राइवेट एंड पॉइंट के थ्रू ही रिकवरी सर्विस वोल्ट एक्सेस हो एक पर्टिकुलर VNet के VM से, देन यू कैन ऐड इट। अभी मैं इसको डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ, बट यू कैन इनेबल द प्राइवेट एंड पॉइंट एज वेल। टैग्स यू कैन एंटर, देन नेक्स्ट, एंड रिव्यू प्लस क्रिएट। तो मैं एक रिकवरी सर्विसेज वोल्ट क्रिएट कर रहा हूँ। क्लिक ऑन क्रिएट ऑप्शन, और अब करते हैं वेट। वाई द प्रोसेस इज नॉट स्टार्टेड, अभी तक नहीं हुआ स्टार्ट, थोड़ा टाइम ले रहा है, मे बी आ गया देखो, डिप्लॉयमेंट इनिशियलाइज हो गई है।
तो RSB इज क्रिएटेड। नाउ लेट्स गो टू द RSB। अब RSB में जाके देखते हैं दिखता कैसे है। सो लेट्स गो टू द रिकवरी सर्विसेज वॉल्ट। वी हैव वन RSB। यू कैन क्रिएट मल्टीपल RSBs फॉर डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज। क्लिक करो इस पे। दिस इज द डिस्क्रिप्शन अबाउट इट। लेफ्ट साइड में देर इज सम ऑप्शन लाइक आइडेंटिटी, जो हम डिप्लॉयमेंट्स के टाइम पे देख रहे थे। नेटवर्किंग अभी इनेबल्ड है। प्रॉपर्टीज देख पाते हो आप। लॉक लगाना है लॉक लगा दो इसके ऊपर अलग से भी, अदरवाइज इट इज हाईली प्रोटेक्टेड। गेटिंग स्टार्टेड में जाके आप बैकअप ले सकते हो। आपको जिस चीज का बैकअप लेना है, गो टू द गेटिंग स्टार्टेड विजर्ड, गो टू द बैकअप। आपके वर्कलोड कहाँ पे चल रहा है? एज्योर पे चल रहा है, स्टैक हब में चल रहा है, HCL में चल रहा है, ऑन प्रीमाइसेस चल रहा है। तो आप चूज करो अकॉर्डिंगली। मान लो आपका वर्कलोड एज्योर पे चल रहा है, तो एज्योर में किस चीज का बैकअप लेना है? देखो आ गए सारे ऑप्शन जो नोट उसमें डॉक्यूमेंटेशन में दिख रहे थे। तो किस चीज का लेना है? वर्चुअल मशीन का लेना है, फाइल शेयर का लेना है, सीक्वल का लेना है, सैप एसे का लेना है, SAP हैना का लेना है, जो भी है यू कैन चूज इट अकॉर्डिंगली। तो आप यहाँ से बैकअप इनेबल कर सकते हो रिसोर्स का। इसके अलावा इफ यू वांट तो आप डायरेक्टली VM पे जाके, अभी जैसे हम VM का बैकअप लेने वाले हैं, तो आप VM पे जाके भी यहाँ से बैकअप इनेबल कर सकते हो। सो मेरा रिकवरी सर्विस वॉल्ट क्रिएट हो गया है। आई कैन गो टू द VM। अभी इस सर्वर का कोई बैकअप नहीं हो रहा। कैसे चेक करेंगे? बैकअप पे जाके चेक कर लो। तो यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, सीधा कह रहा है बैकअप लो। इट मीन्स इस सर्वर का बैकअप नहीं हो रहा। इसके अलावा देखने का दूसरा तरीका ये भी है, यू कैन गो टू द रिकवरी सर्विसेज वॉल्ट। और रिकवरी सर्विस वॉल्ट जो भी है आपका, उसमें जाके यू कैन गो टू द बैकअप आइटम्स। और यहाँ से भी आप देख सकते हो कि कोई भी वर्चुअल मशीन का इस टाइम पे बैकअप नहीं चल रहा। तो वापस से VM पे चलते हैं एंड लेट्स इनेबल द बैकअप। एक और चीज, जब आप बैकअप लोगे यू हैव टू क्रिएट ए बैकअप पॉलिसी। बैकअप पॉलिसी में आपको मेंशन करना पड़ता है कि आपका शेड्यूल क्या होगा बैकअप का। शेड्यूल इन द सेंस, आप इस सर्वर का बैकअप कब कब लेना चाहते हो, बिकॉज सर्वर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंपनी। तो वहां पे डेली बैकअप्स चलते हैं। इफ द सर्वर्स आर क्रिटिकल तो उन सर्वर्स के डेली बैकअप चलते हैं। अब डेली बैकअप चलेगा तो ऑटोमेटिकली कितने बजे उसका बैकअप होगा, क्योंकि मैनुअली कंपनी में काम नहीं होगा। हम मैनुअली जा जाके वी हैव 1000 वर्चुअल मशीन्स, तो हम 1000 वर्चुअल मशीन्स का बैकअप मैनुअली प्लान नहीं करते। वी ऑलवेज मेंटेन द शेड्यूल। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली अपने आप बैकअप स्टार्ट हो जाता है अपने आप ही। तो वी हैव टू प्रोवाइड द प्रॉपर टाइमिंग कि किस टाइम पे बैकअप चलेगा। सो इट विल हैपन बाय द पॉलिसी। उसके बाद जब बैकअप चलेगा तो उसका रिटेंशन कब तक होगा? रिटेंशन मतलब जब आप बैकअप ले चुके होते हो तो बैकअप पॉइंट क्रिएट होगा। बैकअप स्टोर हो रहा है रिकवरी सर्विस वोल्ट में, इट मींस बैकअप पॉइंट क्रिएट होगा। व्हेन द बैकअप इज कंप्लीटेड देयर विल बी ए बैकअप पॉइंट क्रिएटेड, जो कि आर्काइवल स्टेट में होता है, जिसको आप ओपन करके डेटा को रीड नहीं कर सकते, जो मैंने अभी समझाया था आपको। बैकअप इज इन द आर्काइवल फॉर्मेट, तो आप उसको ओपन करके उसके अंदर किस किस चीज का बैकअप है यू कैन नॉट चेक इट। तो उसको देखने के लिए आपको उसको रीस्टोर ही करना पड़ेगा। तो वो जो बैकअप पॉइंट है आपका, जो बैकअप क्रिएट हुआ है, उसको कितने टाइम के लिए आप रखना चाहते हो, दैट इज रिटेंशन पीरियड। तो अगेन इट डिपेंड्स। कुछ कुछ कंपनी में सालों तक बैकअप के रिटेंशन रखने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ द कंप्लायंस रीजन। वो कंप्लायंस का रीजन होता है बिजनेस का। अदरवाइज 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द डेटा, कंपनी डेटा को रखती है। तो जो भी रिटेंशन है वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा, वो कितने टाइम के लिए बैकअप पॉइंट्स को संभाल के रखना चाहती है। इट डिपेंड्स। तो ये सारी चीजें जो है पॉलिसी में डिसाइड करते हो आप, कि किस टाइम पे बैकअप होगा, कितने टाइम का रिटेंशन होगा। सो पॉलिसीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तो पॉलिसी का होना जरूरी है। पॉलिसी आप रिकवरी सर्विस वोल्ट में अगर जाओगे तो यू कैन सी व्हेन यू स्क्रॉल इट डाउन, तो यहाँ पे अंडर द मैनेज यू विल सी द बैकअप पॉलिसीज। तो बाय डिफॉल्ट एक पॉलिसी आपको यहाँ पे मिलेगी। सी, दिस इज द डिफॉल्ट पॉलिसी फॉर द वर्चुअल मशीन। इसके अलावा सीक्वल सर्वर्स की भी अपनी डिफॉल्ट पॉलिसीज आपको मिलेगी, बट आप चाहो तो अपनी खुद की पॉलिसी बना सकते हो। आप चाहो तो अपनी खुद की पॉलिसी ऐड कर सकते हो। और ये प्रोसेस आप VM पे बैकअप इनेबल करने के टाइम भी कर सकते हो। जैसे लेट मी डू इट राइट नाउ, क्योंकि डिफॉल्ट पॉलिसीज पे कंपनी कभी भी काम नहीं करती, दे ऑलवेज क्रिएट देयर ओन पॉलिसी। तो ये डिफॉल्ट पॉलिसीज को यूज करने का कोई फायदा नहीं है। You can use it for the testing, but we are learning as part of the production। हम प्रोडक्शन ग्रेड की तरह ही बिल्कुल पढ़ रहे हैं। सो वी शुड डू द थिंग्स which happens in the real environment।
तो हम ऐड करते हैं एक बैकअप पॉलिसी। तो देखो पूछ रहा है किसके लिए करना है, वर्चुअल मशीन के लिए करना है या फाइल शेयर। तो दीज आर द ऑप्शंस। मान लो मुझे वीएम के लिए करना है, मुझे वर्चुअल मशीन्स के बैकअप कब कब होंगे उसकी पॉलिसी बनानी है। सो आई विल चूज द एज्योर वर्चुअल मशीन। अब देखो ये ऑप्शन आ गए। तो दो तरीके की पॉलिसी होती है, याद रखना। इनहैंस्ड एंड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड पॉलिसी में एक दिन में एक ही बार बैकअप हो सकता है। यू कैन इनेबल द बैकअप वंस इन ए डे। मतलब एक दिन में एक बार। जैसे मेरा अगर वीएम है VM01, अगर मैंने स्टैंडर्ड पॉलिसी चूज कर लिया तो मैं एक दिन में एक ही बार बैकअप ले सकता हूँ। जैसे पूरे दिन में मान लो मैंने इनेबल कर दिया कि रात को 12 बजे ही इसका बैकअप होगा, देन इट विल हैपन 12 AM मिडनाइट ऑलवेज। मैं चाहता हूं कि एक दिन में मल्टीपल टाइम्स बैकअप हो। जैसे मैं चाहता हूं कि एक बैकअप मॉर्निंग में 8 AM पे हो जाए, देन 12 PM पे दोपहर को एक बैकअप हो, फिर शाम को 6 PM फिर एक बैकअप हो, फिर नाइट में 12 AM फिर से एक बैकअप हो। सो दैट ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल विद द स्टैंडर्ड पॉलिसी। स्टैंडर्ड एक दिन में एक ही बार बैकअप लेता है, वेयर एज अगर आपने इनहांस्ड ऑप्शन चूज किया तो इनहांस्ड में आप एक दिन में मल्टीपल टाइम्स बैकअप ले सकते हो। जैसे ये जो मैंने ऑप्शन आपको बताए, एक दिन में अगर आपको मल्टीपल टाइम्स बैकअप लेना है, यू कैन चूज द इनहेंस्ड। और कुछ कुछ सर्वर इतने क्रिटिकल होते हैं कि उनका बैकअप आर्ली के हिसाब से, मतलब 4 आवर्स, 5 आवर्स, 6 आवर्स, 7 आवर्स अकॉर्डिंगली, या एक दिन में 2 बार, इस तरीके से भी लिया जाता है कंपनी में। तो अगर ऐसा कुछ है, इफ यू वांट टू टेक मल्टीपल बैकअप्स इन ए डे, चूज द इनहांस्ड। अदरवाइज स्टैंडर्ड विल टेक द बैकअप वंस इन ए डे। इसके अलावा अगर आप इनहांस्ड पॉलिसी यूज कर रहे हो, इट विल ओनली सपोर्ट इट ऑन द ट्रस्टेड लॉन्च वर्चुअल मशीन। ये सिर्फ ट्रस्टेड लॉन्च वीएम के लिए है। आप स्टैंडर्ड वीएम्स पे इनहांस्ड पॉलिसी यूज नहीं कर सकते। व्हाट व्हाट आई मीन टू से इज, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर आपके पास, लेट्स से इफ यू हैव ए सर्वर, आपने ध्यान दिया होगा जब हम सर्वर क्रिएट करते हैं, सो देयर इज ऑप्शन ट्रस्टेड लॉन्च, स्टैंडर्ड, प्रोटेक्शन, जो हमने बहुत स्टार्टिंग में डिस्कस भी किया था। व्हेन आई क्रिएट द सर्वर, ये दोबारा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ओवरव्यू पेज पे ही देखो, यहाँ पे इन द सिक्योरिटी टाइप देयर इज ऑप्शन ट्रस्टेड लॉन्च, स्टैंडर्ड, कॉन्फिडेंशियल। ये मैंने आपको डिस्कस किया था। अगर आपने स्टैंडर्ड सिक्योरिटी टाइप पे वर्चुअल मशीन बना दी, इट विल ओनली सपोर्ट द स्टैंडर्ड बैकअप पॉलिसी। ये सिर्फ स्टैंडर्ड सपोर्ट करेगा। फिर यू कैन नॉट इनेबल द इनहेंस्ड बैकअप इन द स्टैंडर्ड वर्चुअल मशीन। अगर आपने स्टैंडर्ड वर्चुअल मशीन बनाई है तो इनहांस्ड बैकअप सपोर्ट ही नहीं करेगा। मतलब आप एक दिन में मल्टीपल टाइम्स बैकअप इनेबल नहीं कर सकते, ये याद रखना। तो इनहांस्ड ओनली वर्क्स विद द ट्रस्टेड लॉन्च वर्चुअल मशीन। स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड वीएम्स के साथ काम करता है। इनहांस्ड में आप एक दिन में मल्टीपल बैकअप्स ले सकते हो। 30 डेज का ऑपरेशनल टीयर रिटेंशन है। ऑपरेशनल टीयर रिटेंशन मतलब कि जो इसके स्नैपशॉट्स वगैरह होते हैं, यू कैन मैक्सिमम इनेबल इट फॉर 30 डेज। इसके अलावा अगर आपने अपने वर्चुअल मशीन्स में अल्ट्रा डिस्क या प्रीमियम एसएसडी वर्जन 2 की डिस्क ऐड कर रखी है, तो ये उसका बैकअप सपोर्ट करता है। लेकिन स्टैंडर्ड जो आपका सिक्योरिटी टाइप है या पॉलिसी टाइप है, इट ओनली सपोर्ट्स द स्टैंडर्ड HDD एंड स्टैंडर्ड SSD डिस्क। तो आपकी डिस्क अगर आप बैकअप लेना चाहते हो अपने ड्राइव्स का, तो वो स्टैंडर्ड HDD या स्टैंडर्ड SSD होनी चाहिए, इफ यू आर चूजिंग द स्टैंडर्ड, अगर आपकी वीएम स्टैंडर्ड में बनी है तो। अगर आपने इनहांस्ड पॉलिसी सपोर्ट कर रखी है, तो ये सारे ड्राइव्स को सपोर्ट करता है। ये स्टैंडर्ड HDD को भी सपोर्ट करता है, स्टैंडर्ड SSD को भी सपोर्ट करता है, प्लस प्रीमियम SSD डिस्क को भी सपोर्ट करता है। तो दिस इज द डिफरेंस। तो मोटा मोटा डिफरेंस ये याद रखना, एक तो ट्रस्टेड लॉन्च सपोर्ट, दूसरा मल्टीपल बैकअप्स वाला, और प्रीमियम डिस्क सपोर्ट। सारा याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सारा कुछ है भी नहीं इतना ज्यादा। सो आई विल गो विद द इनहेंस्ड, क्योंकि मेरी जो वर्चुअल मशीन है अगर आप देखोगे, वैसे मैं स्टैंडर्ड ले सकता हूँ, बट इनहेंस्ड इज द लेटेस्ट वन, और ज्यादा सिक्योर ऑप्शंस प्रोवाइड है उसके अंदर, सिक्योर बूट्स के। अगर आप मेरी वीएम में जाते हो तो मैंने वीएम को ट्रस्टेड लॉन्च में क्रिएट किया था, सी, ये देखो। तो इसमें मैं दोनों ले सकता हूँ। ट्रस्टेड लॉन्च वाले केस में आई कैन टेक द स्टैंडर्ड ऑल्सो, बट आई विल टेक द इनहेंस्ड। बट अगर स्टैंडर्ड वीएम होती तो सिर्फ स्टैंडर्ड पॉलिसी ही सपोर्ट करता, और स्टैंडर्ड पॉलिसी में एक दिन में एक ही बार बैकअप होता है। सो आई विल गो विद द इनहेंस्ड। पॉलिसी का एक नाम दे देते हैं, आई विल गिव कस्टम बैकअप पॉलिसी, दैट इज फाइन। अब देखो कब कब बैकअप होगा।
और एक पॉलिसी को आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है एक पॉलिसी एक बीएम के लिए बना रहा हूँ, ये पॉलिसी पूरे आरएसबी के लिए है। आप इसमें मल्टीपल पॉलिसीज बना सकते हो, और जिस बीएम को जिस शेड्यूल पे आपको बैकअप लेना है वो पॉलिसी आप चूज करोगे एट द टाइम ऑफ बैकअप इनेबलमेंट। तो कब कब बैकअप चाहिए, तो देखो आर्ली बैकअप लेना चाहते हो, डेली लेना चाहते हो, वीकली लेना चाहते हो। आर्ली लेना है तो स्टार्टिंग पहला बैकअप कितने बजे होगा, फिर हर 4 घंटे में बैकअप होगा। मतलब अगर आपने 8 बजे फर्स्ट बैकअप लगा दिया इन द मॉर्निंग, तो 8 बजे के ठीक 4 घंटे के बाद सेकंड बैकअप चलेगा, फिर उसके 4 घंटे के बाद थर्ड बैकअप, देन उसके 4 घंटे के बाद फोर्थ बैकअप। तो हर 4 घंटे में बैकअप चलते रहेगा पूरे 24 घंटों में। अगर आपने इसको अकॉर्डिंगली टाइम सेट कर दिया कि 20 आवर्स के अंदर अंदर 4 बार बैकअप हो, तो उसके हिसाब से चलेगा। अगर मैंने इसको डेली कर दिया तो डेली में एक टाइम बैकअप ले सकता हूँ। डिपेंड करता है कंपनी किस टाइप से क्या रिसोर्स यूज कर रही है, अकॉर्डिंगली दे विल सेट अप द बैकअप पॉलिसी। तो हर कंपनी की बैकअप पॉलिसी डिफर करती है अकॉर्डिंग टू द रिसोर्स, कि उनका सर्वर किस टाइप का है। जरूरी नहीं है कि पूरी कंपनी की एक ही बैकअप पॉलिसी हो। सर्वर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, वर्कलोड के ऊपर भी डिपेंड करता है, इट कैन वेरी। तो अलग अलग पॉलिसीज कंपनी में हो सकती है। रीजन वाइज एक पूरी पूरी पॉलिसी हो सकती है कि मेरा अगर इस रीजन में लेट्स से मेरा ये पूरा सब्सक्रिप्शन है, तो इस पूरे सब्सक्रिप्शन में इतने टाइम पे ही बैकअप चलेगा, तो ऐसा भी हो सकता है। इस रीजन में अगर मेरा रिसोर्स है तो इतने टाइम पे बैकअप चलेगा, इतनी बार चलेगा, ऐसा भी हो सकता है। सो मान लो मैंने डेली बैकअप लगा दिया, वीकली भी लगा सकते हो आप, वीकली हर संडे बैकअप हो या हर मंडे बैकअप हो, अकॉर्डिंगली यू कैन चूज इट। मैं एक डेली बैकअप लगा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ हर दिन रात को लेट्स से मिड 12 AM, रात को 12 बजे का बैकअप लगाते हैं हम। ये कंपनी में भी मोस्टली मिड नाइट ही बैकअप्स होते हैं। वेयर इज द टाइमिंग, ये रहा। सो डेली मैं चाहता हूँ रात को 12 बजे, अकॉर्डिंग टू जो भी टाइम जोन है आप चूज कर लो, बैकअप शुड हैपन। इंडिया टाइम जोन चूज करना है, जो भी है यू कैन चूज इट। मेरा सर्वर यूके साउथ में है, सो आई शुड चूज द यूके टाइमिंग, बट जरूरी नहीं है कि आप वही चूज करो। आई विल चूज द इंडियन टाइमिंग। तो आपके सर्वर का टाइम जोन और आपके बैकअप का टाइम जोन दैट कैन बी डिफरेंट, वो अलग अलग हो सकता है, ये भी याद रखना। तो आई विल चूज यूटीसी प्लस 5:30। वेयर इज इट, इंडिया टाइम जोन कहाँ गया हमारा, ये रहा, यूटीसी प्लस 5:30। इसके बाद ये चीजें, रिटेंशन अभी हम डिस्कस करेंगे, रिटेंशंस वगैरह क्या होते हैं, वैसे अभी कर ही लेते हैं। सी, जब बैकअप स्टार्ट होगा, व्हेन द बैकअप विल बी स्टार्टेड, तो बैकअप ना दो प्रोसेस में होगा। जैसे ही बैकअप चलेगा आपके सर्वर का, तो उसके दो स्टेजेस होंगे। पहला होगा स्नैपशॉट, पूरे सर्वर का स्नैपशॉट लिया जाएगा। स्नैपशॉट का मतलब हो गया इंस्टेंट बैकअप। इंस्टेंट बैकअप, जो कुछ भी है उस सर्वर का स्टेट पूरा पूरा बैकअप हो जाएगा। दूसरा होगा ट्रांसफर डेटा टू वॉल्ट, मतलब स्नैपशॉट होने के बाद सर्वर में जितना भी डेटा है, जितना भी वर्कलोड है, उसको रिकवरी सर्विस वॉल्ट में ट्रांसफर किया जाए। तो इस पूरे दो प्रोसेस में टाइम लगता है, मतलब इट कैन टेक 40 मिनट्स तो ले ही लेता है ये एवरेज। बाकी डिपेंडिंग अपॉन द वर्कलोड इट कैन टेक आवर्स, 1 घंटा 1.5 घंटा इतना भी लग सकता है बैकअप होने में। तो बैकअप होने में लगता है टाइम। स्पेशली जो पहला बैकअप होगा, दैट विल बी फुल बैकअप, क्योंकि अभी तक आपने बैकअप लिया ही नहीं था उस सर्वर का। तो उसमें जितना भी वर्कलोड है, जितना भी डेटा है, सबका बैकअप होगा, सो इट टेक्स टाइम। तो वो टाइम लेता है। बट उसी टाइम पीरियड में मान लो आप फर्स्ट बैकअप ले रहे हो, तो बैकअप लेने में मान लो आपको लग गए 40 मिनट्स का टाइम। बट उससे पहले ही अराउंड 20 मिनट्स के स्टेज में ही आपका कोई डेटा लॉस्ट हो गया। अब वो डेटा तो आप रिकवर कर नहीं सकते, क्योंकि जब तक बैकअप नहीं होगा कंप्लीट, तब तक आप उसको रीस्टोर नहीं कर सकते। सो यू लॉस्ट दैट डेटा। तो अगर आपका पहला प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, विच इज स्नैपशॉट क्रिएशन, स्नैपशॉट इज द इंस्टेंट बैकअप, और ये जनरली 10 to 15 मिनट्स में हो जाता है। 10 to 15 मिनट्स या इससे भी कम टाइम में ये हो जाता है। तो अगर ये स्नैपशॉट कंप्लीट हो चुका है, तो इससे आप शॉर्ट टर्म में रिकवरी कर सकते हो, अगर आपका बैकअप कंप्लीट नहीं हुआ है तब भी। क्योंकि बैकअप तब कंप्लीट होगा जब ये दोनों प्रोसेस आपके कंप्लीट होंगे, स्नैपशॉट
एंड ट्रांसफर डेटा टू वॉल्ट। बट किसी रीजन से अगर आपका डेटा लॉस्ट हो जाता है, बीच में ही आपसे एक्सीडेंटली किसी यूजर से डिलीट हो गया और बैकअप आपका कंप्लीट नहीं हुआ था उस टाइम पे भी, सो इफ यू हैव द स्नैपशॉट कंप्लीटेड तो आप वहां से रिकवरी कर सकते हो। तो स्नैपशॉट एक टेम्पररी बैकअप होता है और इसकी ड्यूरेशन ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं होती। तो ये उसी के लिए पूछ रहा है कि आप स्नैपशॉट को कब तक रखना चाहते हो। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी लिमिट देखूं, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे वैल्यू शुड बी बिटवीन 1 to 30। तो मैक्सिमम एक स्नैपशॉट को 30 डेज के लिए रिटेन किया जा सकता है। मतलब जो भी आप यहाँ टाइम दोगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया कि 2 डेज तक वैलिड होगा, तो स्नैपशॉट जो भी क्रिएट हुआ है, जो टेम्पररी बैकअप क्रिएट हुआ है, वो उससे आप 2 डेज के अंदर अंदर रिकवरी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। मैक्सिमम वो 30 डेज के लिए होता है, बट अगर आपको 6 मंथ तक अपना बैकअप रखना है तो स्नैपशॉट काम नहीं करेगा। देन आपको वॉल्ट में जो आपका बैकअप रखा हुआ है उसका रिटेंशन रेंज यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको मैं डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ, या इसको मैं 2 डेज का रहने देता हूँ, 2 डेज कर देते हैं क्योंकि इसकी कोई खास रिक्वायरमेंट हमें है नहीं। बैकअप का डेटा कब तक आप रखना चाहते हो, बैकअप कब तक रिटेन करना चाहते हो? वीकली रखना है आपको, मंथली तक रखना है, या फिर रेगुलर किस हिसाब से रखना है? तो मैं चाहता हूँ कि जो बैकअप का डेटा है वो मेरा 30 डेज तक रहे। 30 डेज के बाद अपने आप ही जो बैकअप है वो डिलीट हो जाए, क्योंकि डेली बैकअप चलेगा तो डेली एक रीस्टोर पॉइंट तो मेरा बनता ही रहेगा। तो आज का जो बैकअप है, जो आज क्रिएट होगा, वो 30 डेज के बाद उसका पॉइंट डिलीट हो जाए। कल जो क्रिएट होगा, कल से उसका अनदर 30 डेज के बाद वो डिलीट हो जाए, सो दैट आई कैन मैनेज माई कॉस्ट एज वेल। बट कुछ कुछ कंपनीज में कंप्लायंस होता है, सो दे हैव टू कीप इट फॉर 2 years एज वेल, 90 डेज, 2 years। तो सालों साल भी बैकअप रखने पड़ते हैं, डिपेंड्स अपॉन द कंपनी। तो जो भी है, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस यू हैव टू सेट दिस क्राइटेरिया कि कितने टाइम के लिए वो बैकअप आप रिटेन करोगे। मतलब वो जो बैकअप क्रिएट हुआ है उस बैकअप के पॉइंट को कब तक आप स्टोर करके रखना चाहते हो। सो आई विल कीप इट फॉर 30 डेज। बाकी क्रिएट करते हैं। ये क्रैश कंसिस्टेंट और ऐप कंसिस्टेंट दो चीजें हैं दैट आई विल डिस्कस लेटर ऑन ड्यूरिंग द डिजास्टर रिकवरी, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी इसको रहने देते हैं यहीं पे। क्लिक ऑन क्रिएट। तो मैंने ये सब चीजें समझ ली है कि ये क्या है। नाउ वी कैन जस्ट क्रिएट द पॉलिसी। सो पॉलिसी क्रिएट हो गई। अब ये पॉलिसी मेरे रिकवरी सर्विस वॉल्ट में मुझे दिखेगी। मैं इसको कभी भी मॉडिफाई कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है एक बार बना दिया तो लाइफ टाइम चलेगी। नो, यू कैन ऑलवेज मॉडिफाई दिस। गो टू द बैकअप पॉलिसी, और मेरी पॉलिसी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये देखो, ये पॉलिसी मैंने बनाई है इनहेंस्ड मोड में, और मैं इसको जब चाहे मैं इस पे क्लिक करके इसको एडिट कर सकता हूँ। ये देखो, एडिट ऑप्शन आर अवेलेबल। तो आपको जब एडिट करना है आप कर सकते हो। यू कैन क्रिएट मल्टीपल पॉलिसीज अलग अलग सर्वर पे। आप उनका बैकअप, मान लो आपके 10 सर्वर है, 10 सर्वर का बैकअप यू कैन कीप इट इन द RSB। 20 सर्वर है, उनका बैकअप RSB में रखो। और आपने मल्टीपल पॉलिसीज बना के हर सर्वर पे अलग अलग पॉलिसी भी लगा सकते हो। तो यू कैन क्रिएट मल्टीपल पॉलिसीज एंड यू कैन कनेक्ट डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज ऑन डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स, या एक ही सेम पॉलिसी को आप मल्टीपल सर्वर्स पे भी कनेक्ट कर सकते हो। अब क्या करते हैं हम, अब बैकअप जरा सर्वर का रन कर देते हैं। सो गो टू द वर्चुअल मशीन। अभी इसका कोई बैकअप नहीं हो रहा, बट इसके अंदर वर्कलोड एंड डेटा है। गो टू द VM। बैकअप के टाइम पे सर्वर ऑन होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर आपने सर्वर ऑफ करके रख दिया और रात का बैकअप सेट कर रखा है तो वो फेल हो जाएगा। नाउ आई विल गो टू द बैकअप ऑप्शन अंडर बैकअप प्लस डिजास्टर रिकवरी। यहाँ आने के बाद अब ये बोल रहा है वेलकम टू द बिजर्ट, बैकअप लिया जाए। तो ये बोल रहा है कि आपके पास रिकवरी सर्विस वॉल्ट है तब तो आप एग्जिस्टिंग चूज कर लो, अदरवाइज नहीं है तो नया बना लो इस सर्वर के लिए। तो हमारे पास तो है, आई विल चूज एग्जिस्टिंग। कौन सा रिकवरी सर्विस वॉल्ट है, ड्रॉप डाउन से चूज कर लो। इट इज RSB 01। उस पे पॉलिसी इनहांस्ड है, इसलिए इनहांस्ड आ रहा है देखो, क्योंकि मेरा BMB इनहांस्ड मोड में क्रिएट हुआ है। कौन सी पॉलिसी लगाना चाहते हो? सो वी हैव द पॉलिसीज हियर। हम अपनी कस्टम बैकअप पॉलिसी जो हमने क्रिएट करी है वो लगाना चाहते हैं इस सर्वर के लिए। और ये उसकी समरी है देखो, डेली बैकअप लेगा एट 12 AM एज पर इंडियन टाइमिंग। स्नैपशॉट विल बी वैलिड फॉर 2 डेज। सर्वर का रिटेंशन 30 डेज के लिए होगा। फिर इस सर्वर में ये बता रहा है 2 डिस्क भी लगी हुई है। इस सर्वर में 2 डिस्क है, एक तो OS डिस्क है, उसका तो बाय डिफॉल्ट बैकअप लेगा ही लेगा, प्लस एक डेटा डिस्क भी है देखो। और ये ऑप्शनल है, इफ यू डोंट वांट टू टेक द डेटा डिस्क बैकअप आप इसको हटा सकते हो। बस OS डिस्क का बैकअप ये जरूर लेगा, क्योंकि OS डिस्क इज द पार्ट ऑफ वर्चुअल मशीन बैकअप, क्योंकि सारा VM का स्टेट उसी में है। तो मैं डेटा डिस्क का भी बैकअप लेना चाहता हूँ, मैंने इसको भी चेक कर दिया। फ्यूचर में
आप चाहते हो कि और भी डेटा डिस्क अगर इस वीएम में ऐड हो तो वो भी बैकअप का पार्ट बन जाए, उसका भी बैकअप हो, तो आप इसको चेक करोगे। अदरवाइज इसको आप अगर हटाते हो, इफ यू अनसेलेक्ट दिस बॉक्स, तो फ्यूचर में जो डेटा डिस्क ऐड होगी उसका बैकअप ये बाय डिफॉल्ट नहीं लेगा। यू हैव टू इनेबल द सेपरेट बैकअप ऑफ दैट। तो मैं चाहता हूँ फ्यूचर में जो भी डिस्क ऐड हो उसका भी बैकअप ले, तो मैंने इसको चेक कर दिया। नाउ यू विल क्लिक ऑन इनेबल बैकअप। अब ये चेक करेगा। See, ये बैकअप डिप्लॉय कर रहा है। अब ये चेक करेगा कि बैकअप होगा या नहीं होगा आपके सर्वर का। सो इट विल स्कैन इट प्रॉपरली, और कोई भी कमी होगी तो आपको एरर दे देगा, अदरवाइज दैट विल बी पास्ड। सो वेट करते हैं। तो बैकअप डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीटेड। अब अगर वर्चुअल मशीन पे जाता हूँ, इफ आई गो टू माई VM01, और यहाँ पे अगर मैं बैकअप ऑप्शन में जाता हूँ, सो यहाँ पे अब देखो बैकअप इनेबल हो चुका है। प्री चेक इज सक्सेसफुल, प्री चेक इसका पास हो गया। इट मीन्स बैकअप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, पॉलिसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। बट अभी जो है इसका बैकअप हुआ नहीं है। सी, इनिशियल बैकअप इज पेंडिंग, वार्निंग दे रहा है कि अभी तक एक भी बैकअप नहीं हुआ। देखो अभी तक हमें कोई रिकवरी पॉइंट भी नहीं दिख रहा जिससे हम रिकवरी कर सके। ये वार्निंग क्यों है? क्योंकि हमने बैकअप पॉलिसी लगा रखी है एक, और उस बैकअप पॉलिसी के अकॉर्डिंगली पहला बैकअप या हर दिन जो बैकअप होगा वो कब होगा? डेली रात को 12 बजे, एज पर इंडियन टाइमिंग। अभी वो टाइम नहीं है। इट मीन्स द बैकअप विल नॉट हैपन राइट नाउ। वो रात को 12 बजे होगा, हर दिन रात को 12 बजे। तो रात को जब 12 बजेंगे अपने आप ही ये सर्वर इसका बैकअप ले लिया जाएगा, और इसमें सारी डिस्क इंक्लूडेड है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर मैं अभी रात को 12 बजे तक वेट करूंगा तो ये अपने आप तो बैकअप ले ही लेगा, कंपनी शेड्यूल पे काम करती है। लेकिन कभी कभी ऐसी भी रिक्वायरमेंट आती है कि लेट से मेरी डेवलपमेंट टीम ने इस सर्वर में कुछ टेस्टिंग करी, या डेवलपमेंट टीम कुछ टेस्टिंग करने वाली है सपोज। तो टेस्टिंग करने से पहले दे वांट टू टेक द इंस्टेंट बैकअप राइट नाउ, कि भाई आप बैकअप लेके रख लो अभी के अभी की स्टेट का। रात के 12 बजे तक का मुझे वेट नहीं करना, क्योंकि मैंने कुछ एप्लीकेशंस डेवलप करी है इस सर्वर में अभी। तो टेक द बैकअप राइट अवे। फिर हम उसकी टेस्टिंग करेंगे। उस टेस्टिंग में अगर कुछ गड़बड़ हो गई, वी हैव टू रोल इट बैक टू द एप्लीकेशन स्टेट अगेन, तो हमें उसको रोल बैक भी करना पड़ेगा। तो उस केस में ऐसा भी रिक्वायरमेंट आ सकती है कि आप अभी के अभी मैनुअल बैकअप ले लो इसका, रात के 12 बजे। क्योंकि अगर बैकअप होगा, रात के 12 बजे अगर बैकअप होगा, तो उस केस में सारे दिन में जो एप्लीकेशन इसके अंदर क्रिएट हुई है या उसके जो भी डेवलपमेंट्स किया गया है, अगर उसमें से कुछ भी गड़बड़ होती है और रोल बैक करना पड़ा, तो हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारे पास अगर कोई बैकअप अवेलेबल है येस्टरडे स्टेट का, तो हम येस्टरडे स्टेट पे रिकवरी कर सकते हैं, आज का पूरा डेटा हमारा लॉस्ट हो जाएगा। तो इसलिए कभी कभी इंस्टेंट बैकअप की रिक्वायरमेंट भी आ जाती है। अदरवाइज नहीं आती है तो वो अपने टाइम के अकॉर्डिंगली तो बैकअप ले ही लेगा। तो इनिशियल बैकअप मतलब फर्स्ट बैकअप पेंडिंग है, जो कि रात को 12 बजे होगा। बट अभी मुझे इंस्टेंट बैकअप लेना है, तो मैं इस पॉलिसी को इग्नोर भी कर सकता हूँ। ये अपने आप अपने टाइम पे ये बैकअप तब भी लेगा, ये 12 बजे तब भी बैकअप लेने वाला है। बट अभी मैं एक मैनुअल बैकअप भी ले लेता हूँ। तो जब मैनुअल बैकअप लेना है तो जस्ट बैकअप नाउ पे क्लिक करो। रिटेंशन बता रहा है क्योंकि हमने 1 मंथ का रिटेंशन लिया है, तो देखो इसका रिटेंशन जो है 1 महीने के बाद ठीक तब तक के लिए ये रिटेन करेगा रीस्टोर पॉइंट को। मतलब बैकअप हमारा तब तक के लिए वैलिड रहेगा, उस बैकअप से हम रीस्टोर कर सकते हैं विद इन 1 मंथ। तो दैट इज ओके। ओके पे क्लिक करो। बैकअप ट्रिगर कर रहा है, ये मैनुअल बैकअप है। ऑटोमेटिक बैकअप भी ऐसे ही होगा, रात को अपने आप बैकएंड में चलते रहेगा। तो बैकअप ट्रिगर हो गया है, और बैकअप होने में लगता है टाइम।
अब कहाँ पे दिखेगा देखो, जब आप व्यू जॉब्स में जाओगे ना, जॉब्स इन द लास्ट 24 आवर्स, जब आप व्यू जॉब्स में जाओगे तो यहाँ पे देखो बता रहा है कि बैकअप इज इन प्रोग्रेस। बैकअप का प्री चेक्स कंप्लीट हो गया था, बट बैकअप अभी प्रोग्रेस में है। 19 सेकेंड्स हो चुके हैं, इतने टाइम पे हमने बैकअप लगाया है। जब आप व्यू डिटेल्स में जाओगे देन यू विल बी एबल टू सी द प्रोसेस। ये देखो जैसे मैंने बताया, सबसे पहले ट्रांसफर डेटा टू वॉल्ट, टेक स्नैपशॉट होगा, पूरा स्नैपशॉट लिया जाएगा, इंस्टेंट बैकअप जिसको हम बोलते हैं। जब ये कंप्लीट होगा तो उसके बाद ट्रांसफर डेटा टू वॉल्ट, सारा सारा डेटा जो है वो रिकवरी सर्विस वॉल्ट में मूव होगा। उसके बाद ये बैकअप को चेक करेगा कि बैकअप हेल्दी है कि नहीं है, मतलब बैकअप तो ले लिया बट इस बैकअप से क्या रिकवरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो ये 3 स्टेज है, पहले 2 होते थे, बट इस ईयर से ये वाला एक एक्स्ट्रा स्टेज ऐड हुआ है, ये वाला वैलिडेशन ऑफ बैकअप्स, हेल्थ चेक करना। अदरवाइज लास्ट ईयर तक सिर्फ 2 ही स्टेट होते थे इसके। तो इसमें लगता है टाइम। स्नैपशॉट फिर भी 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा, बट पूरा बैकअप कंप्लीट होने में इट कैन टेक अराउंड 30 to 40 मिनट्स, जबकि ज़्यादा वर्कलोड नहीं है। सो वी हैव टू बेयर विद द टाइमिंग, हमें वेट करना पड़ेगा जब तक ये तीनों स्टेट कंप्लीट नहीं हो जाते। उसके बाद हम रिकवरी प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो बैकअप स्टार्ट हुआ है इतने टाइम पे, लेट्स सी हाउ मच टाइम इट विल टेक। और इसको बीच बीच में हम रिफ्रेश भी करते रहेंगे। 1 मिनट 34 सेकेंड्स हो चुके हैं स्नैपशॉट स्टार्ट हुए। एंड मीन वाइल आई विल बी ऑन म्यूट, यू गाइस कैन ऑल्सो जस्ट मॉनिटर द स्क्रीन कि कितना टाइम लग रहा है, कैसे लग रहा है, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन प्रोसीड विद द नेक्स्ट स्टेप। तो तब तक बैकअप को चलने देते हैं, वी विल नॉट डिस्कस एनीथिंग फॉर नाउ। तो बैकअप चलने देते हैं।
एज वी कैन सी 8 मिनट्स 43 सेकंड्स में देखो स्नैपशॉट प्रोसेस डन हो गया। तो ये ज्यादा टाइम नहीं लेता, 10 to 15 मिनट्स के अंदर अंदर हो जाता है। बट अब ये प्रोसेस टाइम लेगा, ट्रांसफर डेटा टू वॉल्ट। तो वैलिडेट बैकअप भी बहुत जल्दी हो जाएगा इसी के साथ साथ, बट ये प्रोसेस जो है इट विल टेक सम टाइम। तो वेट करते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे क्या स्टेटस आ रहा है आगे का।
The second stage is also completed. Transfer data to Vault took around 18 minutes. Snapshot creation took around 8 minutes 43 seconds. अब लास्ट स्टेज में है, so it should not take much time. ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है. Let's wait. See, now the backup process has been completed. So it was started at 7:40 and at 8:08 it got completed with all the stages. So it took around 30 minutes approx. आधा घंटा अप्रोक्स इसने ले लिया तीनों स्टेजेस कंप्लीट करने में. नाउ माय बैकअप इज डन एंड इफ यू गो टू द वीएम, अब अगर आप वीएम में जाते हो एंड इफ यू सी द बैकअप स्टेटस, सो यू कैन सी दैट द बैकअप इज कंप्लीटेड. मेरे पास एक रीस्टोर पॉइंट है, पहला रीस्टोर पॉइंट मेरा बन चुका है. सी, स्नैपशॉट एंड वॉल्ट स्टैंडर्ड. फर्स्ट बैकअप मेरा हो चुका है विद दिस टाइमिंग. अब रात को 12 बजे फिर एक बैकअप चलेगा, हर दिन रात को 12 बजे बैकअप चलेगा. सो इफ यू सी द व्यू जॉब्स हियर यू विल बी एबल टू सी द स्टेटस कि 28 मिनट्स 21 सेकंड लिया इसने कंप्लीट बैकअप को करने में. एंड इफ यू गो टू द व्यू डिटेल्स तो वही प्रोसेस दोबारा आपको दिखने लग जाएंगे. So now this backup is done. And if you go to the recovery services vaults also, here also you will be able to see अंडर द बैकअप आइटम्स यहाँ पे एक सर्वर रजिस्टर हो चुका है, एक सर्वर का बैकअप आरएसबी में चल रहा है. एंड इफ यू क्लिक ऑन दिस तो वो सर्वर है VM01 और ये उसकी पॉलिसीज एंड एवरीथिंग यू कैन सी. एंड व्यू डिटेल्स पे जाओगे तो आपको फिर से रीस्टोर पॉइंट पे लेके जाएगा. तो दिस इज द रीस्टोर पॉइंट विच आई हैव अवेलेबल. एक ही बैकअप पॉइंट है मेरे पास अभी, बट अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल और भी क्रिएट होते रहेंगे. So the backup is successfully completed. Now we have to go with the restoration process. तो restoration process I will cover in the part B क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो चुकी है. So in the part B I will cover the restoration process और दोनों ही वीडियो मैं एक ही टाइम पे अपलोड कर दूंगा so that you can do this complete practical. So I will see you in the next video which is part B of this particular video जिसमें हम restoration process देखेंगे. So hope you liked the video. In case you are liking it, please don't forget to hit the subscribe button, hit the bell notification icon, and please share this video across your groups. And if you have any query, you can always reach out to me in the mentioned email ID in the description box. So thank you very much for your timing. See you in the next session. Signing off. Bye.